Hello and welcome back once again to Steven Sir Makes It Easy, where me, Steven Sir, tries to make your life a little bit more simpler with concepts concerning accountancy and finance. Before I get started with the task for the day, very quickly a few reminders. You can connect with us on our Facebook page, our Instagram ID, as well as the Twitter handle. And the most important one is the Telegram channel given above. If you have not installed Telegram on your mobile phone and you are a subscriber of the channel, it's my request, please get connected to the Telegram channel above, join it, so that this particular Telegram channel is used for official communication to inform you, to update you about the lectures that will be premiered the next day, as well as the most important thing, the PDF of the question and answer, whatever is coached and tutored on this particular platform will be shared at the end of that particular chapter, so that you can download it and use it for your future reference basis. Also, if you do intend to purchase the textbook from which the necessary questions are explained during the various lectures, the purchase link is provided in the description of every lecture. And most importantly, if you have missed out the past tense, that is the last lecture, there is an I button given above. Please click it, watch that particular lecture, and then you can come here. Very importantly, at the end is, if you have not subscribed to our YouTube channel, please do make that a task for the day and subscribe to our channel, and together with that also press the bell icon so that Mr. YouTube notifies you about lectures which are uploaded on this particular platform. That's as far as the reminders are concerned. Let me get started with today's lecture. So we meet once again for the continuation of this subject called as cost accounting. Okay, very quickly. There have been 3 lectures conducted previously, which were the introduction to cost accounting, because आप में से काफ़ी लोगों के लिए cost accounting होता क्या है. Financial accounting आपने सुना होगा, management accounting आपने सुना होगा, cost accounting में भी नहीं सुना. तो पहले चैप्टर में मैंने ये समझा दिया कि cost accounting होता क्या है, उसके कनेक्शन में आपको क्या क्या समझना है. कॉस्ट क्या होता है, कॉस्टिंग क्या होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है, कॉस्ट कंट्रोल क्या होता है. ओके, all of this, and these concepts will continue in upcoming lectures also. Then the first chapter also covered up the types of cost. So cost को अलग अलग एंगल से देखा जा सकता है. ओके, टाइम के एंगल से देखा जा सकता है, फंक्शन के एंगल से देखा जा सकता है, सो यूटिलिटी. सो देयर आर डिफरेंट एंगल्स, ओके, जिससे आप कॉस्ट देख सकते हो. तो टाइप्स और उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन भी हमने लास्ट टाइम किया था. आई थिंक सो आई डिड रिक्वेस्ट यू टू यूटिलाइज द कमेंट बॉक्स एंड टू आंसर अ फ्यू टाइप्स जो मैंने पूछे थे. आई होप आपने वो किया है. अगर आपने वो किया है, मैं डेफिनेटली पढ़ लूँगा. अगर उसमें अगर गड़बड़ कुछ है मैं वो रेक्टिफाई करके आपको वहाँ पे कमेंट बॉक्स में बता दूँगा. टुडे वी कंटिन्यू विथ subject with chapter number 2, which is this. So it's appearing about material cost. Okay, so we will during the course of the lectures discuss one by one कि अलग अलग कॉस्ट क्या होते हैं. तो एक है मटेरियल जो सबसे मेन है. अगर मटेरियल कोई भी कंपनी ऐसे हवा में तो काम नहीं करती है. अगर वो हवा में काम करती है तो ऑब्वियसली वो फ्रॉड कंपनी होगी. हाँ, so maximum companies manufacture something. So right now where I am sitting and I am giving this particular lecture and it being recorded, अगर मैं मेरे आसपास देखूँ, I see a lot of products. So obviously because I'm using a computer system, I see a monitor, I see a keyboard, a mouse, I see a छोटा पंखा, okay, जो मेरे बगल में चल रहा है. I see a mic, okay, I see through this chashma, I see a mouse and I see a remote and so many things. These all products. ये products कोई ना कोई material से बनाए गए हैं. Okay, so very very important. अगर ये products जिन material से बनाए गए हैं
वो मटेरियल पे जो कंपनी यूज करती है मटेरियल को कंट्रोल करे, देन ऑटोमेटिकली, बिकॉज मटेरियल इज द मेन कॉस्ट, नॉर्मली ऑफ एनी प्रोडक्ट, सबसे बड़ा खर्चा मटेरियल का ही होता है। और अगर कंपनी उस पर कंट्रोल रख सके, अभी कंट्रोल कैसे रखते हैं वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट इफ दे कैन कीप, घोड़ा चला रहे हो और घोड़े पे कंट्रोल नहीं है, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी पे कंट्रोल नहीं, अरे तो जाके ठोकोगे ना, खुद का भी नुकसान कराओगे, जिसको ठोकोगे उसका भी नुकसान कराओगे। कंट्रोल, यू मस्ट हैव कंट्रोल। वाटर, व्हाट डज अ डैम डू? कंट्रोल द फ्लो ऑफ वाटर। पानी है, पानी की जरूरत सबको है, बट अगर ज़्यादा आए तो तबाही मचा देगी। सो डैम डज दैट, कंट्रोल्स, ब्रिंग्स कंट्रोल। तो नॉर्मली दैट इज व्हाट वी वांट, कि थिंग्स आर देयर बट एक कंट्रोल का होना ज़रूरी है, बिकॉज देर इज़ नो कंट्रोल तो ऑटोमेटिकली ड्यूरिंग द पैंडमिक फेज आई विजिटेड अ शॉप बाय द नेम ऑफ डी मार्ट। आप में से इन इंडिया तो सब लोग जानते रहेंगे, ओके। सो उन्होंने स्ट्रिक्टली, बिकॉज गवर्नमेंट ने कहा सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए, क्राउडिंग नहीं होना चाहिए, तो उन्होंने कूपन्स देने स्टार्ट किए। कूपन, तो यू जस्ट कांट गो टू डी मार्ट, चलो अंदर जाओ, ट्रॉली लेकर अंदर जाओ, नो, आप पहले कूपन लो। वो कूपन में नेक्स्ट डे का एक स्लॉट में टाइमिंग आपको दिया जाएगा, ओके, 4:30 PM। तो मतलब क्या है, आई कैन गो एट 3 o'clock 7 AM, नो, 4:30 PM, बिकॉज दे वॉन्टेड टू ब्रिंग अ कंट्रोल। तो दे मेड द कूपन सिस्टम कि बाबा आपको ये 1 घंटा मिलेगा, ये 1 घंटे में ही आपको आना है, आपका सामान लेना है, घर जाना है। सो दे कंट्रोल्ड। तो बाबा कंट्रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इन कॉस्ट अकाउंटिंग कॉस्ट कंट्रोल is a very important concept. So right now what are we trying to understand is material. क्या होता है, क्या varieties होते हैं, and then later on through different techniques we will also try to understand कि इस पे control कैसे पाया जाता है. So first thing, ये मैं जो बोलूँगा उसके हिसाब से है नहीं, बिल्कुल नहीं. So वो दूसरे प्रोफेसर है, वो तो इतने बड़े हैं, ओके, वो जो बोले ना वो पत्थर की लकीर नहीं, ऐसा नहीं है. कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6, ओके, जो पूरे देश में, भारत देश में चलता है, उसमें दिया गया है कानून फॉर मटेरियल ट्रीटमेंट. सो मटेरियल कौन से कंपनी का, उनको क्या सोचना है, कैसे कैलकुलेशंस करने हैं, given in cost accounting standard 6. So like that there are many cost accounting standards, okay, but 6 specifically deals with मटीरियल, ओके. लेबर करके है उसका फंडा अलग है, ओवरहेड्स करके है उसका फंडा अलग है, एंड बाकी एंड सो फोर्थ. फर्स्ट थिंग सर, मटीरियल क्या होता है? अरे बड़ी सिंपल सी बात है. एनीथिंग दैट यू यूज टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट और टू प्रोवाइड अ सर्विस, एनीथिंग दैट यू यूज टू मेक अ प्रोडक्ट आउट ऑफ इट. दिस इन फ्रंट ऑफ मी इज अ रिमोट. क्या मटीरियल यूज किया? बटन्स है सर, एक स्क्रीन है, अंदर बैटरी रहेगा, प्लास्टिक, ओके. दिस इज वायरलेस ईयरफोन, इसमें भी अंदर इन दी ईयरफोन्स, ओके, इफ आई कैन ओपन इट अप, इट मे नॉट बी दैट क्लियर, बट देर आर स्मॉल स्पीकर्स, ओके, ईयरफोन्स. उसके अंदर देर आर मैग्नेट्स, क्योंकि दैट इज हाउ द साउंड आउटपुट इज क्रिएटेड. तो ये क्या, ये प्रोडक्ट है. इसके लिए जो मटेरियल यूज़ किया है उसको मटेरियल कहते हैं, ओके. हाँ, और सर्विस भी ऊपर कहा है. मतलब क्या है, अर्बन कंपनी आपने सुना होगा. अर्बन कंपनी आपके घर पे अगर एसी है तो वो एक टेक्नीशियन को बेचती है रिपेयर कराने के लिए. वो टेक्नीशियन जब आता है तो वो कुछ ना कुछ मटेरियल का यूज़ करता है ताकि वो क्लीनिंग करा सके. या अर्बन कंपनी आपके घर पे आपके थोबड़े को, शक्ल को, ओके, ब्यूटिशियन बेच सकता है. सो दैट ब्यूटिशियन कम्स, दैट ब्यूटिशियन ये पोतता है, वो पोतता है, मतलब दे अप्लाइज डिफरेंट क्रीम्स. तो वो उस सर्विस को प्रोवाइड करने के लिए उन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो वो मटेरियल बन जाता है. तो एनीथिंग दैट यू यूज़, जिससे आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो या एक सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, किसी तरह की सेवा दे सकते हो, दैट बिकम्स मटेरियल. अब मटेरियल बेसिकली 2 टाइप का है, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मटेरियल का मतलब क्या है?
पहले लिखा है मटीरियल्स एंड सप्लाईज that are consumed during the manufacture of a product and which are directly identified with that product. मतलब अगर okay, in front of me I have a desk. I can't show it to you, कैमरा का एंगल चेंज करना पड़ेगा, but it is made of wood. अब तो wood timber is a direct material. उसके बगैर ये डेस्क वुड का डेस्क तो नहीं बन सकता. ओके अगर ये चीज रिमोट, ओके इसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या है? प्लास्टिक. प्लास्टिक के बगैर ये नहीं बन सकता. इट कैन बी मेड ऑफ अदर मटेरियल. मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि प्लास्टिक का ही बनता है, नहीं, बट प्लास्टिक का रिमोट है तो प्लास्टिक तो चाहिए ना. चश्मा, ग्लास, तो विदाउट ग्लास तो चश्मा नहीं बनने वाला. सो आई रिपीट, अगर वो ग्लास का बनता है तो आई रिपीट माई सेल्फ, अगर मैं ये काफ़ी बार मेरे बच्चों को बोलता हूँ, चिकन बिरयानी चिकन के बगैर कैसे बना सकते हैं? वो उसका नाम ही है चिकन बिरयानी, मटन बिरयानी और जिस टाइप की वेज बिरयानी या वेज पुलाव आप जो बोलते हो, मतलब ये जो चीज़ डायरेक्ट है रे, ये तो होना ही चाहिए, इसके बगैर कैसे बनेगा? हाँ, वेरी राइट. तो ये थोड़ी कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं. कॉटन इन अ शर्ट, रबर इन अ फैक्ट्री, लेदर इन अ शू कंपनी. अरे जूता लेदर का है तो लेदर तो यूज़ होना चाहिए ना. ओके अगर टायर रबर का बनता है तो रबर तो यूज़ होना चाहिए ना. ये तो मतलब सीधी सी बात है. ओके वो मटेरियल जिसका ये बनता है वो तो होना ही चाहिए डायरेक्ट. उसके बगैर प्रोडक्ट जब बनता है वो प्रोडक्ट बन ही नहीं सकता. ओके वो हो गया डायरेक्ट. लेकिन इनडायरेक्ट का मतलब क्या है? वेल लेट्स सी. Indirect material are materials that are used in the production process but that are not directly traceable to the product. मतलब क्या है इसका? Well, if you see that gloves, tools, cleaning supplies, helmets, overall office chairs and desk. There are many more. See, एक मटीरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा बन जाता है दैट इज डायरेक्ट. बट एक मटीरियल जो प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं, वो प्रोडक्ट को पेश करने का हिस्सा, प्रेजेंट करने का हिस्सा बन जाता है, वो होता है इनडायरेक्ट मटीरियल. सो आई रिपीट माई सेल्फ, इफ यू गो टू अ होटल और आप कुछ ऑर्डर करो और वो आपके पास लेकर आया जाता है, तो आप लेट्स से कोई चाइनीज डिश, खाने की डिश, नूडल्स, फ्राइड राइस, वट एवर इज इट यू ऑर्डर, तो उसमें जो राइस है, जो नूडल्स है, जो वेजिटेबल्स डाले गए हैं या चिकन डाला गया है, जो भी इंग्रेडिएंट्स है, वो डायरेक्ट. ओके बट आपकी टेबल पे जो सजावट किया होगा, मे बी कैंडल लाइट डिनर पे आप गए रहेंगे, सो इज अ कैंडल पुट देयर. ओके सो विथ समबडी हु इज वेरी, आपका गठबंधन हो चुका है, समबडी वेरी नियर टू यू. ओके हाँ, तो वो जो कैंडल है वो थोड़ी आप खाने वाले हो, वो तो बस एटमॉस्फेयर बनाने के लिए है. हाँ, तो इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रेजेंटेशन ऑफ व्हाट यू आर गोइंग टू ईट. वो कंज्यूम नहीं करने वाले. ओके तो आई रिपीट माई सेल्फ, और वो कैंडल आप ही के लिए नहीं है, दूसरा कोई कपल आएगा, वो बैठेंगे, उनके लिए बाकी का कैंडल यूज करेंगे. सो जो आपके पकवान में नूडल्स, चावल था, वो डायरेक्ट, वो आपके पेट में गया, उसका पेमेंट आपने किया. बट जो कैंडल था वो आपके आधे घंटे 1 घंटे के लिए जला, उसके बाद में दूसरे किसी के लिए भी उसको यूज किया है. तो यहाँ पे एक वर्ड क्या है? नॉट डायरेक्टली ट्रेसेबल टू द प्रोडक्ट. मतलब नॉट जस्ट फॉर यू, वो दूसरे किसी की, थोड़ा आपके लिए, थोड़ा दूसरे किसी के लिए, वो बन जाता है इनडायरेक्ट. डायरेक्ट मीन्स स्ट्रेट इन द प्रोडक्ट. इनडायरेक्ट मतलब आजू बाजू ऑफ द main material. So right now this is the meaning of material, this is what is direct and this is what is indirect. इसके ऊपर चर्चा हम अभी थोड़ा ज़्यादा करेंगे. Right now material के varieties क्या क्या होते हैं? 1 raw material. अच्छा, raw material मटेरियल नहीं होता, वो one type of material होता है. That's what you have got to understand about. Raw material is the main material यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ अ प्रोडक्ट. तो जैसे मैं अभी डिस्कस कर रहा था ना, डायरेक्ट. हाँ मतलब यार अगर शुगर बनाने का है ना, शुगर, शक्कर, तो शुगर केन तो मांगता है. कॉफ़ी बनाने का है
तो कॉफ़ी बीन्स तो लगेगी। अगर कॉटन का कुछ बनाने का है तो कॉटन तो लगेगा। तो दीज आर नेचुरल। रॉ मटेरियल का मतलब क्या है, ये नेचर में अवेलेबल है। पीपल टेक इट, कंपनीज टेक इट एंड फ्रॉम दैट दे मैन्युफैक्चर अ प्रोडक्ट। ओके, तो गन्ने का अलग प्रोडक्ट बनता है, कॉफ़ी बीन्स का अलग प्रोडक्ट बनता है, कॉटन का अलग प्रोडक्ट बनता है, एंड लाइक दैट देर आर सो मेनी थिंग्स अवेलेबल। आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेल यू व्हाट डज रॉ मटेरियल विच इज वन ऑफ अ टाइप ऑफ मटेरियल मीन। तो ये तो हो गया रॉ मटेरियल क्या होता है। देन एडिटिव्स, एड, एडीडी, एड। अभी इसको मतलब क्या होता है, मीन्स मेन माल आपने डाला, रॉ मटेरियल मेन माल, बट थोड़ा टेस्ट के लिए आपने एक्स्ट्रा कुछ डाला। 2-3 डेज बैक, ओके, हमारे धर्म पत्नी का जन्मदिन था, तो हमने डिसाइड किया हम बिरयानी बनाएंगे। तो हम किचन में घुस गए, हम यूट्यूब चालू किए, यूट्यूब पे जो टॉप का वीडियो था बिरयानी का, हमने वो देख डाला। तो उसमें कहा उन्होंने कांदा लो, काटो, टमाटर लो, काटो, ओके, चावल लो। तो हमने लिया एंड देन एंड में मैडम ने कहा, क्योंकि मैडम एक्सप्लेन कर रही थी कि देखो अगर आपके पास रोज वाटर है फ्लेवर की, आप वो भी डाल सकते हो, हमारे पास नहीं था। ओके, अगर आपके पास केसर है उसको दूध में डालो, मिलाओ, और वो भी आप ऊपर डाल सकते हो, हमारे पास था, हमने ले लिया। तो ऐसी चीजें ऑप्शनल है। मेन चावल ये वो तो मांगता है, कांदा टमाटर वो तो मांगता है, उसके बाद कैसे बिरयानी बनाओगे। हाँ, वो रोज का जो बोला ना पानी, और वो जो केसर का बोला वो नहीं है तो चलेगा। तो आई रिपीट, दोज आर लाइक द एडिटिव्स। है तो ऐड कर लेना, थोड़ा कुछ लुक अच्छा आता है, थोड़ा कुछ फ्लेवर अच्छा आएगा, थोड़ी सुगंध अच्छी आएगी। सो अब हमारे कमिंग टू नॉट माई चिकन बिरयानी कुकिंग बट दिस वन, इन इंडस्ट्रियल भाषा एडिटिव्स कहाँ पे होते हैं, अरे इन एवरी प्रोडक्ट एडिटिव्स होते हैं, एज सिंपल एज दैट। व्हाट यू सी, ओके, इज कॉल्ड एज लाइम, हाइड्रेटेड लाइम, एंड इन द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ शुगर, ये लाइम का जो होता तो इस तरह पत्थर जैसा दिखता है, पत्थर जैसा एक्चुअली, ओके, एंड आई रिपीट, इट इज़ यूज्ड टेक्सचर देने के लिए शुगर को, जो शुगर केन में से, सो लिटरली शुगर केन में से जो निकाला जाता है उसमें से आप मे बी यू सी गुड़, ओके, मतलब गुड़ बनता है उससे, जैगरी, बट जैगरी का कलर और शक्कर का कलर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, शेप में, साइज में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हाउ इज़ दैट फ़र्क बहुत प्रोसेसिंग किया जाता है, इस तरह का लाइन, ओके, जो खाने लायक है उसको यूज़ किया जाता है। व्हेन जो आपके पास नोटबुक है ना, लेट मी जस्ट शिफ्ट अ लिटिल, वो नोटबुक का पेपर को एक पर्टिकुलर शाइन लाने के लिए, ग्लॉसीनेस लाने के लिए, फील लाने के लिए चाइना क्ले इज यूज्ड। सो इफ यू सी अबाउट दिस बिसाइड्स मी, ओके, तो पेपर इज द मेन इंग्रेडिएंट, ओके, बट उसके ऊपर उसका एक फील लाने के लिए, एक ग्लॉसीनेस, एक चमक लाने के लिए चाइना, तो ये एडिटिव है, ऐड किया जाता है। तो अगेन दैट्स जस्ट 2 एग्जांपल्स। दुनिया में आपके आसपास में लाइक ऐसे जितने प्रोडक्ट्स, वो एक ही मटेरियल, एक मेन मटेरियल है, बट देर इज अनदर मटेरियल दैट इज एडिड, जिसकी वजह से उसका लुक, उसका टेक्सचर, उसका टेस्ट, उसका स्मेल बदल जाता है। नेक्स्ट, ओके, सो रॉ मटेरियल इज अ मटेरियल, एडिटिव्स इज अ मटेरियल, बॉट आउट कंपोनेंट्स, स्पेयर पार्ट्स, उसको दूसरी भाषा में स्पेयर पार्ट्स भी कहते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बॉट आउट कंपोनेंट्स? वेल, many companies, LG, Samsung, Apple, Xiaomi, Oppo, Vivo, okay, make mobile phones. Are all the parts in a mobile phone made by one company? Actually, Apple is the best company and the best example for that.
एटलीस्ट अगर सैमसंग मोबाइल बनाती है तो आई कैन से सैमसंग उसका डिस्प्ले बनाती है, आई कैन से कि सैमसंग उसके अंदर जो मेमोरी कार्ड आता है वो बनाती, खुद से बनाती है। बाकी इन अ मोबाइल फोन देयर आर मेनी पार्ट्स। सैमसंग डज मेक सम थिंग्स, LG डज मेक सम थिंग्स, सोनी डज मेक सम थिंग्स, एप्पल डज नॉट मेक एनीथिंग एक्चुअली। बैक कवर, फ्रंट ग्लास, एप्पल डज नॉट मेक। बैटरी, एप्पल डज नॉट मेक। Speaker, Apple does not make. RAM, camera, Apple does not make. Antennas, chips, Apple does not make. तो यार Apple अपना लोगो डालती है। Yes, Apple is an assembler. वो इन चीज़ों का ऑर्डर दूसरों को देती है और वो दूसरे कंपनीज में भी 50 कंपनीज रहेंगे, वो अपने अपने पार्ट्स को देते। तो ये बॉट करते हैं, बॉट दे, तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे, और ये सबको फिक्स करते हैं। यस, एप्पल इज गुड एट व्हाट? द इंटीग्रेशन। व्हाट डज दैट मीन? अ मोबाइल फोन इज एन इंटीग्रेशन, अ मिलाप ऑफ टू थिंग्स, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। ओके, एप्पल की कंपनी में जो रैम होता है फोन में, वो में भी 4 GB है। सैमसंग LG में पहुंच चुका है 12 GB, उससे ज़्यादा। बट स्टिल एन एप्पल फोन runs a lot smoother, जिसमें रैम बहुत कम है, ओके, कंपेयर टू अ सैमसंग और एन LG। उनका प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी काफ़ी अच्छा है क्योंकि उनका सॉफ्टवेयर iOS इज वेरी गुड। सो उन्होंने इंटीग्रेशन किया, एंड दैट इज द रीजन द कंपनी इज सो वेल नोन, एंड उनके अलग ही चाहने वाले हैं, जो जोक्स में कहते हैं ना, गुर्दा बेच के भी फोन ले लेंगे। हाँ, तो दे आर बॉट आउट कंपोनेंट्स। स्पेयर पार्ट्स क्यों है? देर आर सो मेनी। आई वॉच अ चैनल ऑन यूट्यूब, जेरी रिग एवरीथिंग। वो जो भी नया फ़ोन आता है उसको लेते हैं, उसको तोड़ते हैं। बट ही सेज, ओके, इट्स अ टेस्टिंग चैनल जो बोलते हैं कि हाउ स्टडी इज़ द फोन, क्वालिटी क्या है फ़ोन का, एंड अगर ग्लास टूट जाएगा तो क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है, कैमरा टूट जाएगा, बैक कवर टूट जाएगा तो क्या उसको रिप्लेस किया जा सकता है। येस, बिकॉज ये स्पेयर पार्ट्स में अवेलेबल रहते हैं। तो बॉट आउट कंपोनेंट्स आर ऑल्सो मटीरियल, बट वो एक स्पेसिफिक कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट के मटीरियल होते हैं। रॉ मटीरियल होता है, एडिटिव्स मटीरियल होते हैं, बॉट आउट कंपोनेंट्स मटीरियल होते हैं। नेक्स्ट, सब असेंबलीज। नाउ व्हाट्स एन असेंबली? आपके स्कूल में था ना असेंबली? क्या प्रोफेसर लाइन में खड़ा करते, 20 बच्चे ये लाइन में, 20 बच्चे ये लाइन में, 20 बच्चे ये लाइन में। हाँ, तो कभी कभी मैन्युफैक्चरिंग भी असेंबलीज में होता है। means an assembly of various components with distinct identity and forms part of a finished product. The car is a main product, but एक मोबाइल में there can be 500 parts. In a car there can be 5,000 parts. Again, Tata makes everything, Mahindra makes everything, Hyundai makes everything. No, my dear, they don't. They assemble. इंजन दूसरे किसी ने बनाया, स्टीयरिंग व्हील दूसरे किसी कंपनी ने बनाया, हॉर्न भोपू दूसरे किसी कंपनी ने बनाया, मिरर दूसरे किसी कंपनी ने बनाया। अगेन a very well known company by the name of Tesla, they also don't make their tires, they don't make the body of the car, they don't make the seat covers, they don't make that. Again, Tesla is extremely good at integration. उनका बड़ा जो मॉडल X है, मॉडल S है, ओके, वो क्या है? इट्स नथिंग बट अ बिग कंप्यूटर। द कार इज अ बिग कंप्यूटर बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रिक व्हीकल। उन्होंने भी इंटीग्रेशन हार्डवेयर का और उनके सॉफ्टवेयर का बड़ा चंगा किया है। तो आई रिपीट, सब असेंबलीज, एक गाड़ी बनाने के लिए इंजन दूसरी कंपनी से लेते हैं, ओके, स्टीयरिंग व्हील दूसरे कोई कंपनी से लेते हैं और उसको एक लाइन में लगा के गाड़ियों को बनाया जाता है। तो अगेन फ्रॉम द बिगिनिंग, मटीरियल इज द नेम ऑफ द चैप्टर, बट देर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मटीरियल, और वो मैं एक एक करके आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सेसरीज, ये तो आपने डेफिनेटली बहुत बार सुना रहेगा। लैपटॉप खरीदोगे, एक्सेसरीज मिलता है। मोबाइल खरीदोगे, एक्सेसरीज मिलता है। होता क्या है? इज नॉट एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बेसिक फंक्शन ऑफ द प्रोडक्ट, बट सप्लाइड एज एन ऑप्शनल आइटम।
मतलब क्या है, देखो ऐसे उसके बगैर लैपटॉप खरीदा, लैपटॉप बैग मिला, लैपटॉप बैग अच्छा हुआ मिल गया, क्यों, लैपटॉप कैसे चलेगा उसके बगैर, यार क्या मजाक कर रहे हैं, लैपटॉप तो स्विच ऑन कर चल जाएगा, वो लैपटॉप बैग बस उसको यहाँ से वहाँ पे लेके जाने में हेल्पफुल है, ओके। तो आई रिपीट, दैट इज़ एन एक्सेसरी, उसके बगैर तुम्हारा लैपटॉप चल जाएगा। हाँ, तो उसी तरह आपने टीवी लिया, टीवी को ढकने के लिए कवर दिया गया, अच्छा हुआ दे दिया यार, वरना टीवी को कैसे चलाओ, अरे टीवी को तो चला सकता है, वो कवर इज ओनली फॉर एन एक्सेसरी, ओके। आपने स्मार्ट वॉच लिया, उसके साथ कुछ एक्सेसरी मिल गया, मोबाइल फ़ोन लिया, उसके साथ कुछ एक्सेसरी मिल गया। तो आई रिपीट, इन अ कार, म्यूज़िक सिस्टम, आजकल एवरीथिंग इज़ डिजिटल, नो, एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड प्ले और द म्यूज़िक सिस्टम, ये क्या है, द एसी सिस्टम क्या है, वो एक्सेसरी है, गाड़ी उसके बगैर चल जाएगी, अगर वो नहीं रहेगी तो एक होल रहेगा, एक छेद रहेगा, बट गाड़ी चल जाएगी, गाड़ी अपना टॉप स्पीड भी आपको देगी, गाड़ी के अंदर जितने लोग बैठ सकते हैं, दे कैन से, द कार की जो बेसिक फंक्शनैलिटी है इज टू टेक पीपल फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी, वो करेगी, ये एक्सेसरी है। आप चाहो तो इसको फिट कर सकते हो तो थोड़ा और मज़ा आपको आएगा। हाँ, तो दैट्स एक्सेसरी जो रॉ मटेरियल होता है। एंड द लास्ट, कंज्यूमेबल स्टोर्स। यू सी, वंस आपने कुछ मशीन खरीद लिया, यू हैव टू कॉन्स्टेंटली, ओके। मैंने कुछ समय पहले, ये जो आप मेरी हालत बालों की देख रहे हो जो बचे हुए हैं, मैंने एक ट्रिमर खरीदा, ओके, फिलिप्स के नाम का एक ट्रिमर खरीदा। तो उसके पहले मैंने थोड़ी रिसर्च की, ट्रिमर्स सैकड़ों की तादाद में अवेलेबल है, सो मेनी ट्रिमर्स आर अवेलेबल। सम ट्रिमर्स में एक ऑयल का छोटा सा बॉटल मिलता है, ये तो काफ़ी बड़ा है, छोटा सा बॉटल, एंड दे सेड, देखो भाई आपको रेगुलरली जो ब्लेड है ना उसको ऑयल, एक बूंद ऑयल का डालना पड़ेगा, सो दैट वो जंक ना खाए, रस्ट ना करे। तो आई रिपीट, एक बार ट्रिमर ले लिया, अभी मुझे याद रखना है एवरी टाइम थोड़ा ऑयल थोड़ा, तो वो ट्रिमर के परफॉर्मेंस में, फंक्शनैलिटी में, कार्य में, काम करने में कंज्यूम हो जाता है। हाँ, तो उसी तरह कंज्यूमेबल स्टोर्स क्या है, मेंटेन करना है आपके एसेट को, आपको ये यूज करना पड़ेगा, ओके। कैरम बोर्ड, आप गोटियों को मारते हो ना, कैरम के कॉइन्स को, तो स्मूथ रखने के लिए वो कुछ बोरिक पाउडर आता है, आपको वो मेंटेन करने के लिए स्मूथनेस, आपको वो यूज करना पड़ेगा। सो व्हाट आर कंज्यूमेबल स्टोर्स इन मेनी मेनी कंपनीज, ऑयल, छोटा ऑयल, बड़ा ऑयल, ये मशीन्स में डाला जाता है सो दैट इट वर्क्स प्रॉपरली, इट गिव्स इट्स ऑप्टिमम परफॉर्मेंस, ओके। देन पेंटिंग, अ पेंट, ओके, कंपनीज के अंदर जो मशीन्स रहते हैं उनको रेगुलरली पेंट करना पड़ता है। आपके घर में आपका घर का पेंटिंग साल में एक बार होता रहेगा, बट कंपनी में मे बी एवरी मंथ। व्हाई? बिकॉज रस्ट, मॉइस्चर शुड नॉट कम ऑन अ मशीन, जंक नहीं खाना चाहिए, पेंटिंग हैज टू बी रेगुलरली डन, इट कीप्स द रस्ट अवे। देन मेरे पीछे आपको क्या दिख रहा है, कॉटन। कॉटन का मैं क्या करूँगा, अरे बाबा वो जो बड़ा मशीन है ना, उसको आपको वाइप करने में, उसको ऑयल आपको अगर लगवाना है, हाँ। कॉटन इज यूज्ड इन अपहोल्स्टरी मटेरियल, मैट्रेसेस, बेडिंग इंडस्ट्रीज, वो तो बात अलग है, दैट इज एज अ मेन ingredient and is also used for wiping, okay, I'm just trying my best, and polishing in automotive and hardware industries. किसको आपको वाइप करना है, किसको आपको पॉलिश करना है, वेल मशीन्स को कॉटन यूज़ किया जाता है, ओके, और फिर वो गंदा हो जाता है, फिर उसको आपको फेंक देना पड़ता है। तो कॉटन डायरेक्ट भी होता है कभी कभी, और बेडिंग मैट्रेसेस के अंदर, और कभी कभी वो इनडायरेक्ट भी होता है, वो कंज्यूमेबल स्टोर्स का एक हिस्सा है, ओके। बैक टू माई पोजिशन वेरी क्विकली, लेट मी रिकैप। रॉ मटीरियल इज द मेन मटीरियल, additives is added to the main material, bought out components, ये स्पेयर पार्ट्स होते हैं जो एक कंपनी एक साथ में लेके आके कुछ बनाती है,
सब असेंबलीज को एक कतार में लगा के मैन्युफैक्चरिंग में काम आता है। एक्सेसरीज वो मेन नहीं है, बट वो अगर वो आप चाहो तो खरीद सकते हो। एंड कंज्यूमेबल स्टोर। सो these were all the different materials which you have to know before you understand this chapter, before I end for the day. मटीरियल कंट्रोल कितना बड़ा मुद्दा है? तो काफ़ी बड़ा मुद्दा, क्योंकि अगर मटीरियल पे आप कंट्रोल रखो तो फिर क्या हो जाएगा? तो ऑटोमेटिकली आपका कॉस्ट प्राइस पे आपको कंट्रोल रहेगा, बिकॉज मटीरियल इज द मेन कॉस्ट। व्हेन यू ईट समथिंग इन अ रेस्टोरेंट, फॉर दैट रेस्टोरेंट व्हाट इज द मेन कॉस्ट इज दैट। आपको चाहो तो वो रेस्टोरेंट रास्ते पे भी सर्व कर सकती है, एसी का ज़रूरत नहीं है, कॉस्ट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, बट जो खाना है वो थोड़ी कम कर सकती है। हाँ, सो इट सेज द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग दैट सफिशिएंट स्टॉक्स आर रिटेन्ड इन स्टॉक टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरी स्टॉक। मतलब इट साउंड्स वेरी कंफ्यूजिंग। द फंक्शन ऑफ इंश्योरिंग, पक्का करना, दैट सफिशिएंट स्टॉक्स आर मेंटेन्ड, आर रिटेन्ड इन स्टॉक। तो पहला सामान, सेकेंड इज गोडाउन, स्टॉक का मतलब, टू मीट ऑल रिक्वायरमेंट्स विदाउट कैरिंग अननेसेसरी स्टॉक। आपके घर में आपकी मम्मी मटीरियल पे कंट्रोल ज़रूर रखेगी। आई वेंट टू द मार्केट, आई रेगुलरली गो एंड आई बॉट 2 kg बटाटा, 2 kg बटाटा, क्योंकि थोड़ा सस्ता मिल रहा था। घर पे आया, मेरी मम्मी ने, सॉरी मेरी धर्मपत्नी ने, ओके, मुझे प्यार के नज़र से नहीं देखा। तो मैं बोला यार मैं तो 2 kg थोड़ा सस्ते में लेकर आया हूँ, तो यू शुड बी हैप्पी। बट शी इज़ लाइक नो, 1 kg इज़ इनफ। क्यों? क्योंकि 2 kg रखोगे, हम इतना खाते नहीं हैं, उसमें से पौधे निकल आएंगे, वो बटाटे में से पौधे निकल आएंगे इफ़ इट इज़ केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम। तो 1 kg इज़ इनफ फॉर अस। तो मैं बोला अरे यार ये तो हमको पता ही नहीं है। सफिशिएंट क्वांटिटी स्टॉक में होनी चाहिए ताकि अननेसेसरी वेस्ट ना हो। ये होता है मटेरियल कंट्रोल, हर किचन में होता है, हर मम्मी ये करती है, बड़े बड़े कंपनीज में गोदाउन के जो मैनेजर रहते हैं वो भी ये करते हैं। एडवांटेजेस क्या है मटेरियल पे अगर आप कंट्रोल रखोगे? टू अवॉइड अंडर स्टॉकिंग, टू अवॉइड ओवर स्टॉकिंग। सामान आपके बॉडी में, ओके, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, WBC, RBC एक लेवल का होना चाहिए। ज़्यादा बैड, कम ऑल्सो बैड। इफ़ यू गो टू जिम, इंस्ट्रक्टर विल ऑलवेज टेल यू प्रोटीन्स, सर प्रोटीन्स, मसल बिल्ड करना है, प्रोटीन्स आपको खाना है, कंज्यूम करना है, ये खाओ प्रोटीन मिलेगा, वो खाओ प्रोटीन पाउडर लो, ये खाओ। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड, आप उनको भी पूछ सकते हो कि एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए, रिक्वायर्ड। ओवर इज बैड, अंडर इज बैड। मटीरियल गोदाउन में जितना चाहिए, रिक्वायर्ड उतना होना चाहिए। इफ इट इज केप्ट लेस इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम, इफ इट इज केप्ट मोर इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम। लेस रहेगा तो क्या प्रॉब्लम रहेगा कि प्रोडक्शन बंद हो जाएगा क्योंकि माल कम था। ओवर स्टॉक करोगे तो क्या प्रॉब्लम हो जाएगा? सड़ जाएगा, सड़ जाएगा, पॉसिबल है। इफ इट इज अ नेचुरल आइटम जिसका एक एक्सपायरी होता है, सड़ जाएगा। सो मटेरियल कंट्रोल करोगे तो दोनों चीज़ें टेक केयर होती है, कम भी नहीं होगा, ज़्यादा भी नहीं होगा। टू बाय मटेरियल ऑफ द रिक्वायर्ड क्वालिटी एट मिनिमम कॉस्ट फ्रॉम द रिलायबल सोर्स। व्हेनेवर यू गो टू बाय इन द मार्केट, दुकान तो बहुत है, सो मेनी शॉप्स, बट बेस्ट तुम्हारे दिमाग में एज अ कंज्यूमर व्हाट इज देयर इन योर माइंड? मेरे को बेस्ट क्वालिटी खरीदना है, एट नॉट द हाइएस्ट प्राइस, एट द least price from a trustworthy shopkeeper. Single customer thinks like this. Why doesn't a big company think like this? They also think. उनका ऑर्डर तो करोड़ों करोड़ों में रहता है, so they want to buy जितना चाहिए उतना, कम से कम भाव में, बेस्ट अवेलेबल डीलर से। मटीरियल कंट्रोल ये भी करा देता है। टू मिनिमाइज द टोटल रिलेटेड कॉस्ट, क्या है? ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट। Whenever you buy material, whenever you buy material, two costs are connected to it, ordering and carrying. okay? अगर आप स्विगी से ऑर्डर करते हो, जोमेटो से ऑर्डर करते हो, तो जो होटल का रेट है उससे में भी आपको 20-30 रुपया ज़्यादा देना पड़ता है। तो यू आर लाइक मैं तो जाके होटल से ही ले लेता हूँ, ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा कम हो जाएगा।
हाँ कम हो जाएगा, थोड़ा सस्ते में आपको मिलेगा। तो व्हेन यू डू कॉस्ट मटेरियल कंट्रोल, जो खर्चे हैं ना उसको कम कैसे करें, एवरीबडी इज वांटिंग टू डू दैट। सबके दिमाग में एक ही चीज़ है, खर्चों को कम कैसे करो। मटेरियल कंट्रोल समझोगे, खर्चा कम आप कर सकोगे। एंड दैट इज व्हाट विल हैपन इन द चैप्टर अहेड टू अवॉइड वेस्टेजेस एंड लॉसेस। ओके, ओवर स्टॉकिंग नहीं होगा तो वेस्टेज ऑटोमेटिकली अवॉइड हो जाएगा एंड नुकसान उसके वजह से कम हो जाएगा। बिकॉज डिफरेंट प्रोडक्ट्स को इन द वैक्सीनेशन प्रोसेस इन द कंट्री ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, पंजाब गवर्नमेंट, हरियाणा गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, उत्तराखंड गवर्नमेंट को क्या बोला है, आपके स्टेट में अगर वैक्सीन का वेस्टेज सबसे कम होता है, हम आपको ज़्यादा क्वांटिटी में वैक्सीन सप्लाई करेंगे। सपोजिटली केरला इज़ वेरी गुड एट दिस, वेस्टेज वो कम से कम करते हैं, कम से कम। दैट्स गुड ना, सो मेनी पीपल रिक्वायर वैक्सीन। और अगर एक दिन में 2-3 वाइल ऑफ अ वैक्सीन वेस्ट होता है, अरे वो 2 को दिया जा सकता था और उनका जान, अगर उनको कोविड होता है, बचाया जा सकता था। वेस्टेज इज सो इम्पोर्टेंट, वो नहीं होना चाहिए या बहुत कम होना चाहिए। एंड दैट इज द बेसिस ऑन विच द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टोल्ड ऑल द गवर्नमेंट्स, तुम ज़्यादा मांग रहे हो वैक्सीन, वेस्टेज कम करो। तो आई रिपीट, कंट्रोल। ओके, हाँ, टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड्स। हाँ, तो ऑब्वियसली ना मटेरियल कंट्रोल में इवन वैक्सीनेशन प्रोसेस का अगर मैं एग्जांपल आपको आगे दूँ तो एवरी पर्सन वी हैव गॉट करोड्स ऑफ इंडियंस, बट एवरी पर्सन जिसको वैक्सीनेट किया जा रहा है उसका कोविन वेबसाइट पे, पोर्टल पे एक फर्स्ट डोज दिया, कौन सा दिया, कब दिया, उसके बाद कितने दिन के बाद सेकेंड डोज। अ रिकॉर्ड इज बीइंग केप्ट, इट हैज़ टू बी, अदरवाइज वैक्सीन्स में किनको कब दिया और कौन सा वाला दिया गड़बड़ हो सकता है। इट हैज़ टू हैव अ सिस्टमैटिक रिकॉर्ड टू प्रोवाइड necessary and up-to-date information to the management. Here the central government, you can say, in the vaccination process is the management. If they have to take decisions, they have to decide. सुप्रीम कोर्ट ने उनको बोला है भाई तुम्हारा वैक्सीनेशन पॉलिसी क्या है, ओके, कब तक सारे इंडियंस को वैक्सीन मिल जाएगा। तो उनको जवाब देना पड़ा, क्या हम दिसंबर तक करेंगे, आने वाले 6 महीनों में एवरी इंडियन अबाउ 18 years इज गोइंग टू बी वैक्सीनेटेड। नाउ दे हैव टू हैव द इंफॉर्मेशन, क्या कौन से स्टेट में कितनी पब्लिक है, कितने लोगों को वैक्सीन किया गया है और एक दिन में वो कितने वैक्सीन दे सकते हैं और उनको कितना सप्लाई करना पड़ेगा। ओके, दिल्ली गवर्नमेंट ने एक एजेंडा निकाला, 1 month 60+ हम सबको वैक्सीन करेंगे अगर हमारे पास वैक्सीन सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम पे सप्लाई करेगी। उन्होंने एक प्लान बनाया। ओके, तो द मैनेजमेंट विच इज द टॉप पीपल, द सेंट्रल गवर्नमेंट, दे हैव टू मेक श्योर इतना वैक्सीन जाना चाहिए सो दैट उनके प्लान सक्सेसफुल हो सके। तो आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल ऑफ वैक्सीनेशन। उसी तरह एक कंपनी मटेरियल के लिए भी डिसीजंस करती है। तो मटेरियल कंट्रोल क्या होता है, वी विल लर्न इन द चैप्टर अहेड, एंड उसके एडवांटेजेस क्या होते हैं थियोरिटिकल पर्सपेक्टिव से, ये मैंने आपको समझा दिया। मटेरियल, types of material control and advantages was the agenda for the day by which this lecture, first lecture comes to an end. I hope this was understood to you. If the explanation is understood, please like ज़रूर कर देना। एंड अगर यू थिंक नहीं सर यहाँ पे बेटर हो सकता था, वहाँ पे बेटर हो सकता था, डिसलाइक कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब डिसलाइक करोगे तो रीज़न डेफिनेटली आप बताइए। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल आइकन को दबा दीजिए सो दैट नो यू गेट द नोटिफिकेशन कि हमारा लेक्चर, आपका लेक्चर कब ये नेक्स्ट अवेलेबल ये यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल होगा। शेयर द वीडियोज़ विद ऑल ऑफ योर फ्रेंड्स, ओके, सो दैट मोर एंड मोर पीपल नो द चैनल and know the content, and that content, the videos, the lectures can be useful to them also. Till the time we meet again, please take care of yourself. अपने बड़ों का, अपने छोटों का, अपने परिवार वालों का, सभी का ख्याल रखना। A good day to all of you. God bless. Bye for now. I forgot this.